Hello everyone. In this video, we will continue further the topic methods of capital budgeting, and here we will understand internal rate of return method. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy of Commerce, where learning and education is imparted in an easy way. If you're new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's begin with the capital budgeting methods. There are many methods of evaluating investment proposals, and these methods can be categorized into traditional methods and time-adjusted methods. In the earlier videos of capital budgeting, we have discussed the traditional methods, and in the previous video, we started with the time-adjusted methods or the discounted methods. And we discussed in the earlier video the net present value method. In this video, we will discuss the internal rate of return method. To understand internal rate of return method, you should know what is net present value method and the concept of time value of money. So before understanding internal rate of return method, you must watch the video of net present value method and understand it first. Only then you will be able to understand internal rate of return method. So I will provide the link for the video of net present value method and all other videos of capital budgeting in the description box. You can watch these videos by clicking on that link. So let's understand what is internal rate of return method. The internal rate of return method is also a modern technique of capital budgeting that considers the time value of money. Internal rate of return method capital budgeting की एक modern technique है because this is the time adjusted method of capital budgeting. Why this is time adjusted method? Because it considers the time value of money. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, जैसे कि हमने एनपीवी मेथड डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में. एनपीवी मेथड इज आल्सो अ मॉडर्न टेक्निक दैट कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इन द सेम वे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड आल्सो कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी. That's why it is called modern technique as well as a time adjusted method. It is also known as time adjusted rate of return, discounted cash flow, discounted rate of return yield method and trial and error yield method. इस मेथड को टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है. आईआरआर को टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है. एज वेल एज इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायल एंड एरर यील्ड मेथड बिकॉज आईआरआर इज इंटरपोलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड. In the net present value method, the net present value is determined by discounting the future cash flows of a project at a predetermined or specified rate called the cutoff rate. जैसे कि हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में जो कैश फ्लोज है उनको डिस्काउंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कट ऑफ रेट या प्री डिटरमाइंड रेट. एक रेट ऑफ कट ऑफ रेट डिटरमाइन की जाती है पहले से और उस कट ऑफ रेट की हेल्प से कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जाता है. But in the net present value method, under the internal rate of return method, the cash flows of a project are discounted at a suitable rate by hit and trial method. नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जाता है कट ऑफ रेट से, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में किसी भी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को कैसे डिस्काउंट किया जाता है, वह कैश फ्लोज डिस्काउंट की जाती हैं एक सुटेबल रेट से. वह रेट डिटरमाइन की जाती है हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा. इसलिए इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है. और वह रेट क्या होती है? वह रेट होती है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट करती है उस प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज कैश आउटले की वैल्यू से. So it equates the net present value so calculated to the amount of the investment. Amount of investment means cash outlay. कैश आउटले की जो वैल्यू है उसको इक्वल करती है कैश इनफ्लो की नेट प्रेजेंट वैल्यू से. So under this method, since the discount rate is determined internally, this method is also called as internal rate of return method because इस method में discount rate internally determine की जाती है hit and trial method के द्वारा. इसलिए इस method को internal rate of return method भी कहा जाता है. So internal rate of return can be defined as that rate of discount at which the present value of cash inflows is equal to the present value of cash outflows. So internal rate of return
वह रेट ऑफ डिस्काउंट है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज को इक्वल करती है, किसके साथ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के साथ. So it can be determined with the help of the following mathematical formula. यह एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि शो करती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कंसेप्ट को. What is shown in this mathematical formula? Here it is shown that the present value of cash outflow or initial outlay is equal to present value of cash inflow. So what is C here? C is the initial outlay at time zero. Means जो initial investment की गई है किसी भी प्रोजेक्ट में जिसको कैश आउटले कहा जाता है, इनिशियल आउटले जो कि टाइम पीरियड जीरो में की गई है. जैसे कि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस किया था. टाइम जीरो मींस बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर. जब हमारा ईयर शुरू हुआ उसके स्टार्टिंग में जब हमने इन्वेस्टमेंट की, that is called at time zero. So initial outlay जो सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है टाइम जीरो में, that is called initial outlay and that is C. वह किसके इक्वल होगा? A1, A2, A3 जो यहाँ पे यूज की गई है, A1, A2 एंड अप टू AN. ये क्या है? फ्यूचर नेट कैश फ्लोज एट डिफरेंट टाइम पीरियड. जो कि एक प्रोजेक्ट डिफरेंट कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में. कैश फ्लोज यहाँ पर क्या है इस मेथड में? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. एंड R is rate of discount of internal rate of. So यह मैथमेटिकल इक्वेशन क्या शो कर रही है? C is equal to A1 over 1 plus R plus A2 over 1 plus R square plus A3 over 1 plus R raised to power 3 plus up to A n minus 1 over 1 plus R n minus 1 plus A n divided by 1 plus R raised to power n. तो यहाँ क्या शो किया गया है कि इनिशियल आउटले की वैल्यू किसके इक्वल है? जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यूज के इक्वल. तो यहाँ पे ये जो A1 ओवर 1 प्लस R ये फॉर्मूला यूज किया गया, इसके द्वारा ये फर्स्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की गई, फिर उन प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर दिया गया. तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट कैश इनफ्लोज की इक्वल होंगी कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से. और DF क्या है? यहाँ पे DF मींस डिस्काउंटिंग फैक्टर एट इंटरेस्ट R एंड एट पीरियड N. PVIF RN is equal to DF discounting factor RN over is equal to 1 over R raised to power n. ये कंसेप्ट हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस किया था. हमने समझा था कि कैसे किसी भी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की जाती है, कैसे उसको डिस्काउंट किया जाता है. सो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच all the videos of time value of money to understand this full concept, and with the help of which you will know how we can discount the cash inflows, what is the discounting factor, what is the present value interest factor. We discussed all these things in detail in those videos. So let's understand internal rate of return further. How we'll compute the internal rate of return with this method. So there are different steps involved in it. The first step is determine the future net cash flows during the entire economic life of the project. The cash inflows are estimated for the future profits before depreciation but after taxes. तो सबसे पहले हमें फ्यूचर नेट कैश फ्लोज डिटरमाइन करनी है जो वह प्रोजेक्ट अपनी एंटायर इकोनॉमिक लाइफ में जनरेट कर रहा है. अब फ्यूचर कैश इनफ्लोज कैसे एस्टिमेट करेंगे? हमें यहाँ पर कौन से प्रॉफिट्स लेने हैं? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस. तो आपको कैसे कंप्यूट करना है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस? सबसे पहले प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है, देन आफ्टर डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट्स आएंगे उस पर टैक्स कंप्यूट किया जाएगा. फिर टैक्स माइनस करेंगे उन प्रॉफिट्स में से, प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स आएंगे. आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स आए लेकिन हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस. बट टैक्सेबल प्रॉफिट्स में तो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है बिकॉज हम टैक्सेस ही उन प्रॉफिट्स पे लगाते हैं जिनमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके होते हैं. तब हम टैक्स माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आए हैं उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे. देन वी विल गेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस. तो इस तरह से हम प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्सेस जिसको हम कैश इनफ्लोज कहते हैं कंप्यूट करेंगे. कई बार क्वेश्चंस में ऑलरेडी कंप्यूटेड वैल्यू गिवन होती है, कैश फ्लोज आपको गिवन होते हैं, देन यू विल यूज दोज वैल्यूज.
Second step is determine the rate of discount at which the value of cash inflow is equal to the present value of cash outflow. This may be determined as explained after step 4. इसके बाद हमने कैश फ्लोज डिटरमाइन कर लिए, फिर हम डिटरमाइन करेंगे वो रेट ऑफ डिस्काउंट. रेट ऑफ डिस्काउंट कौन सी? वह रेट ऑफ डिस्काउंट जिस पर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल होगी. वह हम कैसे कंप्यूट करेंगे वो हम स्टेप 4 के बाद समझेंगे कि कैसे उस रेट को डिटरमाइन किया जाएगा. Step 3 is accept the proposal if the internal rate of return is higher than or equal to the minimum required rate of return. That is the cost of capital or cut-off rate, and reject the proposal if the internal rate of return is lower than the cost of cut-off rate. तो यहाँ पर अगर हमें प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का डिसीजन लेना है, वह कैसे लिया जाएगा? वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कब करेंगे? जब प्रोजेक्ट की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से हायर है या फिर उसके इक्वल है. मींस IRR इज इक्वल टू और ग्रेटर देन K. K इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कट ऑफ रेट भी कहा जाता है. एंड वी विल रिजेक्ट द प्रपोजल इफ IRR इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कट ऑफ रेट. अगर IRR K से कम है, K मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कट ऑफ रेट, अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, देन वी विल रिजेक्ट दैट प्रपोजल. Step 4. In case of alternative proposal, select the proposal with the highest rate of return as long as the rates are higher than the cost of capital or cut-off rate. अगर alternative proposals हैं और हमें एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन हाउ वी विल सिलेक्ट द प्रपोजल? हम उस प्रपोजल को सिलेक्ट करेंगे जिसकी रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट होगी, और वह रेट ऑफ रिटर्न हायर है किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हायर होनी चाहिए. और पहले हम देखेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है. अगर दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों की हायर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न देंगे कि उन दोनों में से किसकी हायर है. तो जिसकी हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न होगी, दैट प्रपोजल विल बी सिलेक्टेड. Now we will understand how we compute internal rate of return. जैसे हमने स्टेप 2 में डिस्कस किया था कि हमें एक डिस्काउंटिंग रेट डिटरमाइन करनी है, वह रेट जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को इक्वेट करती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से. अब वह होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. दैट रेट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ विल डिटरमाइन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ पे 2 केसेस हैं. फर्स्ट हो सकता है कि जब हमारी कैश फ्लोज है वह इक्वल है. एक प्रोजेक्ट या किसी असेट के द्वारा जो कैश फ्लो जनरेट की जा रही है, दैट आर इक्वल ओवर द लाइफ ऑफ द असेट. एंड सेकंड कैन बी व्हेन द नेट कैश फ्लोज आर अनइवन और अनइक्वल ओवर द लाइफ ऑफ द असेट. So in both the cases, how will compute the internal rate of return? So let's understand when the annual net cash flows are equal over the life of the asset. First of all, firstly, we'll find out the present value factor by dividing the initial outlay, that is the cost of the investment, by annual cash flow. सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट करना है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? वी विल यूज अ फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? वी विल डिवाइड द इनिशियल आउटले. फॉर्मूला इज दिस: present value factor is equal to initial outlay divided by initial cash inflow. means initial outlay जो कि initial investment है किसी भी प्रोजेक्ट में, उसको डिवाइड करेंगे annual cash inflow से. because annual cash inflow हर एक साल इक्वल है, so उसकी वैल्यू सेम होगी. initial outlay divided by annual cash inflow. Then we will consult the present value annuity tables with the number of years equal to the life of the asset and find out the rate at which the calculated present value factor is equal to the present value given in the table. Then present value annuity table में से जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट की गई है प्रोजेक्ट में, लाइफ ऑफ असेट है, उस ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे कि कहाँ पर वह प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लाई करता है और उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की क्या रेट है, और वह रेट होगी IRR. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल. दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर and with the help of this table we will find out IRR. So what is given in the question? We are given initial outlay, that is 50,000. Life of the asset is 5 years.
5 years लाइफ ऑफ द असेट है। इनिशियल आउटफ्लो कितना है 12,000, सॉरी इनिशियल कैश इनफ्लो दैट इज 12,500, यह कैश इनफ्लोज है, आउटले है 50,000। कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट करनी है। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंप्यूट करेंगे बिकॉज यहाँ पर कैश फ्लो इक्वल है हर एक साल में, सो व्हेन द कैश फ्लोज आर इक्वल वी विल कंप्यूट इट विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। Formula for present value factor is initial outlay divided by annual cash inflows. Initial outlay is 50,000. Annual cash inflows are 12,500. So value of present value factor is 4. Now we will see this value in the present value annuity table. Present value annuity table में हम इसकी value find out करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल में कंसल्टिंग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल फॉर 5 years पीरियड एट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 4। तो देखिए 5 years के कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज देखते हैं। 6% रेट पे है 4.2, देन 4.1 एंड इट इज 3.99। उसके बाद वैल्यू कम हो जाती है, तो यहाँ पे देखिए 4.1 थोड़ी वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे है 3.99, मीन्स हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है 4। तो 4 के नियर अबाउट नियरली इक्वल है 4 की वैल्यू, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट क्या है, रेट है 8%। तो with the help of present value annuity table for 5 years period, the internal rate of return is 8% approximately. As we see from the table that 8% for 5-year period, the present value is 3.9927, which is nearly equal to 4. So this is how we will compute internal rate of return when the cash inflows are equal. Second circumstance can be when the annual cash inflows are unequal over the life of the asset. जब annual cash inflows unequal है life of the asset में, तब हम कैसे compute करेंगे? In case the annual cash flows are unequal over the life of the asset, in such cases the internal rate of return is calculated by hit and trial. That is why this method is also known as hit and trial yield method. इस ऐसे केस में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कंप्यूट की जाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा कंप्यूट की जाएगी। We may start with any assumed discount rate and find out the total present value of cash outflow, which is equal to the cost of initial investment where total investment is to made in the beginning. तो इस मेथड में हम कैसे स्टार्ट करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से? सबसे पहले हम एक एज्यूम डिस्काउंट रेट लेंगे और उस एज्यूम डिस्काउंट रेट की हेल्प से हम सभी कैश फ्लोज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। देन वी विल कंप्यूट द एनपीवी, और हमें ऐसे डिस्काउंट रेट चाहिए जिस पर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है, वैल्यू है, वो इक्वल हो जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से। So the rate at which the total present value of cash inflow equals the initial outlay is the internal rate of return. So internal rate of return क्या है? वह रेट जहां पर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है इनिशियल आउटले की वैल्यू से, वह रेट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। Several discounting rates may have to be tried until the appropriate rate is found. The calculation process is explained in the next slide. तो हम डिफरेंट रेट्स को यूज करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड आउट करने के लिए। सो व्हाट इज द प्रोसेस वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल we will prepare the cash flow table using an arbitrary assumed discount rate to discount the net cash flows to the present value. सबसे पहले कैश फ्लो टेबल प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें कि हम एक आर्बिट्ररी और एक एज्यूम डिस्काउंट रेट लेंगे और उसके बेसिस पे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। Second step, find out the net present value by deducting from the present value of total cash flows calculated in step 1 above the initial cost of the investment. Then we will find out the NPV. अब हमने कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर ली, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब हम एनपीवी कंप्यूट करेंगे। एनपीवी कैसे? टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल कॉस्ट की वैल्यू माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द एनपीवी एट दैट डिस्काउंट रेट। अब एनपीवी कंप्यूट कर ली। इफ द एनपीवी वैल्यू इज पॉजिटिव देन अप्लाई हाई रेट ऑफ रिटर्न, हाई रेट ऑफ डिस्काउंट। अगर एनपीवी की वैल्यू पॉजिटिव आती है देन वी विल हैव टू अप्लाई हाई रेट, बिकॉज जितनी हायर रेट होगी उतनी ही एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव आएगी।
If the higher discount rate still gives a positive net present value, increase the discount rate further until the NPV becomes negative. अगर higher rate of discount अभी भी positive net present value दे रही है, तब हमें discount rate को increase करना है. Increase कब तक करना है? जब तक NPV negative नहीं हो जाती. If the NPV is negative at this higher rate, then IRR must be between these two rates. अब अगर हमने जो डिस्काउंट रेट ली है वहां पर एनपीवी नेगेटिव आ जाती है तो आईआरआर इन दोनों रेट्स के बीच में लाई करेगी, बिकॉज आईआरआर कहां पर होती है? जहां पर एनपीवी जीरो है, जहां पर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाती है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के, और वह कब होगी? जब एनपीवी जीरो होगी. So let's understand how we'll compute internal rate of return. देखिए, हमने पहले एक assume discount rate ली. assume discount rate से for example जो हमारी NPV है वो पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू है जितना, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अगर पॉजिटिव NPV आ रही है तो हम हायर रेट ऑफ डिस्काउंट यूज करेंगे, बिकॉज जितनी हायर रेट ऑफ डिस्काउंट होती है एनपीवी उतनी ही कम होती चली जाती है. तो पॉजिटिव है तो हमें हायर लेनी है, नेगेटिव है तो हमें लोअर रेट लेनी है. तो पॉजिटिव वैल्यू आई है तो हम हायर रेट ऑफ डिस्काउंट लेंगे. हायर रेट ऑफ डिस्काउंट लेने से नेगेटिव एनपीवी आ गई, तो नेगेटिव एनपीवी आई, इट मीन्स आईआरआर कहाँ पर लाया करती है? इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाया करती है. और आईआरआर कहाँ पर होगी? जहां पर एनपीवी जीरो. NPV zero का मीनिंग मीन्स total present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow. तभी NPV जीरो होगी, और जब NPV जीरो होगी that value is internal rate of, वह rate of discount होगी internal rate of return. तो यहाँ पर ये जो NPV जीरो है, इस रेट को फाइंड आउट करने के लिए जो इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है, हम इंटरपोलेट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे. सो वी विल यूज दिस फॉलोइंग फॉर्मूला टू इंटरपोलेट IRR where NPV is zero. What is the formula? Formula is IRR is equal to L. L is the lower rate plus NPV at lower rate over NPV at lower rate minus NPV at higher rate into H minus L means higher rate minus lower rate. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम IRR को इंटरपोलेट करेंगे. Now we will understand it with the help of a numerical example how we will compute IRR with the help of this formula. Yes, one more thing to take care of. यहाँ पर इस फॉर्मूला में NPV at lower rate minus NPV at high rate है. अब हायर रेट पे जो NPV होगी वह क्या होगी? नेगेटिव होगी. तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूला में तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बिकॉज NPV at lower rate पॉजिटिव है, माइनस then NPV at high rate that will be नेगेटिव वैल्यू. तो नेगेटिव वैल्यू जब यहाँ पर आएगी माइनस की वैल्यू, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल. What is given here? We are given the initial investment, that is 60,000. Initial investment means cash outlay. Life of the asset is 4 years. Estimated net annual cash flow. कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है प्रोजेक्ट. फर्स्ट ईयर में 15,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 30,000 एंड फोर्थ ईयर में 20,000. विल हैव टू कंप्यूट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. हमें यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट करनी है. तो हाउ विल कंप्यूट इट? लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है? वी विल प्रिपेयर अ कैश फ्लो टेबल. कैश फ्लो टेबल. In this cash flow table, the first column will be year. In this we will write different years, जितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की गया, ईयर 1, 2, 3 एंड 4. 4 ईयर्स के लिए इस असेट की इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम है. तो एनुअल कैश फ्लो कितने जनरेट करा? फर्स्ट ईयर में 15,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड में 30,000, फोर्थ में 20,000. अब हमें एक एज्यूम डिस्काउंट रेट लेना है. एज्यूम डिस्काउंट रेट कोई भी लिया जा सकता है. से वी हैव टेकन discount rate of 10%. You can take any discount rate. That will give a basic idea कि हमें higher rate लेनी है या lower rate लेनी है. तो हमने 10% rate of discount for example यहाँ पर लिया. तो 10% rate of discount से present value interest factor हमने लिया, जो कि हम टेबल की हेल्प से जो present value इंटरेस्ट फैक्टर टेबल है वहां से हम ये वैल्यूज ले सकते हैं. सो फॉर फर्स्ट ईयर 1 की कोरस्पॉन्डिंग 10% डिस्काउंट रेट पे वैल्यू है 0.909. For second year it is 0.826, for third year it is 0.751, for fourth year it is 0.683.
नाउ वी विल कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैसे कंप्यूट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? वी विल मल्टीप्लाई द एनुअल कैश फ्लो विथ डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर 0.909। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 13,635। सेकेंड में 16,520। सेकेंड थर्ड ईयर में वैल्यू है 22,530। In fourth year, the value is 13,660. Now we will compute the total present value. हमने यहाँ पर total present value compute की, कितनी आई total present value? 66,345. ये total present value। अब हमें यहाँ पर NPV compute करनी है। अब देखिए NPV क्या होगी? NPV कैसे compute की जाती है? हमने previous method में discuss किया, net present value method में, जिसमें कि हम total present value of cash inflows में से minus करते हैं कैश आउटफ्लो की वैल्यू। अब कैश आउटफ्लो हमने ईयर के बिगिनिंग में, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया है, तो उसको डिस्काउंट करने की नीड नहीं है, बिकॉज जब हम जीरो टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको डिस्काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमने कितने की थी? 60,000 इन्वेस्टमेंट की थी। सो 66,345 माइनस 60,000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनपीवी? एनपीवी आएगा यहाँ पर 6,345। तो ये क्या है? पॉजिटिव एनपीवी है। पॉजिटिव एनपीवी है, इट मींस हमें हाई रेट लेनी पड़ेगी, बिकॉज हमें एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए। देन वी विल फाइंड आउट कि आईआरआर उन दोनों के बीच में लाई करेगा, उसको हम इंटरपोलेट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है तो हमें हायर रेट लेनी है, नेगेटिव एनपीवी आ रहा है तो हमें लोअर रेट लेनी है, बिकॉज जैसे जैसे रेट हायर होगी एनपीवी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है तो हम हायर रेट ले ली। फॉर एग्जाम्पल हमने 12% ली। You can take any rate. You can also take 13%. You can also take 11%. तो हमने 12% रेट ली। यहाँ पर वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की वैल्यूज लिखी और इसके बेसिस पे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऐसे ही कंप्यूट किए। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.892, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797 एंड सो ऑन। सभी वैल्यूज हमने कंप्यूट कर। Then we will total present value of cash inflow कितने है? 63,350 minus 60,000। NPV कितनी आ रही है? 3,350। Still it is positive value। अभी भी positive value है, means हमें और higher rate लेनी पड़ेगी। Then we have taken 14%। 14% पे हमने वैल्यू कंप्यूट की। टोटल प्रेजेंट वैल्यू आती है 60,595। अब 60,595 आई है माइनस इनिशियल आउटले की वैल्यू 60,000 हम माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 595। 595 वैल्यू है, मींस स्टिल इट इज पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें और हायर रेट लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है, 595 का डिफरेंस है, तो हम एक रेट हायर लेंगे, वन रेट हायर लेंगे, मीन्स 14% से हम 15% रेट ले रहे हैं। 15% पे हमने वैल्यू का टोटल प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की। वैल्यू आ रही है, इसी सेम मेथड से हम वैल्यू कंप्यूट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से हमने वैल्यूज ले ली और वैल्यू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यहाँ पर कितनी आई है? 59,285 माइनस 60,000। तो यहाँ पर एनपीवी नेगेटिव आ रही है, -715 एनपीवी कंप्यूट होती है 15% पे। इट मींस यहाँ पर 14% रेट से एनपीवी पॉजिटिव है, 15% पे नेगेटिव है। 14% रेट पे एनपीवी कितनी आ रही है? +595 +595। 15% पे एनपीवी आ रही है -715। एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है, तो कहाँ पर लाई करेगी? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि एनपीवी हमारे इन दोनों के बीच में लाई करती है, बिकॉज एक पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर ही आईआर होगी और अब इस आईआर को हमें इंटरपोलेट करना है। इंटरपोलेट करने के लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। इस फॉर्मूला में यहाँ माइनस है, जो माइनस वैल्यू है वो यहाँ पॉजिटिव प्लस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल इंटरपोलेट इट। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ विल कंप्यूट इट। लोअर रेट 14% प्लस NPV at lower rate over NPV at lower rate plus minus NPV at higher rate। बिकॉज यहाँ माइनस है फॉर्मूला में, लेकिन ये वैल्यू माइनस की है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो लोअर रेट क्या है? 14% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट है 595। लोअर रेट पे यहाँ पे 14% पे एनपीवी कितनी आई? 595। 15% पे एनपीवी आई 715।
तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बिकॉज कैश फ्लो 14% रेट ऑफ डिस्काउंट पे 60,595 है, 15% पे है 59,285 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने थे 60,000। तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी IRR। तो हमने ये वैल्यूज पुट की। अब देखिए 595 क्या है, एनपीवी एट लोअर रेट प्लस एनपीवी एट हाई रेट। यहाँ पे प्लस क्यों आया, फॉर्मूला में माइनस है, माइनस देन माइनस 715, तो ये प्लस हो जाएगा इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। वैल्यू कितनी आई IRR की, दैट इज 14.45%। तो ये 14.45% वह रेट है जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। So this is how we will compute internal rate of return when the cash inflows are unequal. So we have discussed internal rate of return method and how we can determine the internal rate of return. Now we will discuss what are the advantages of internal rate of return method. Like the net present value method, it considers the time value of money and can be usefully applied in the situations with even as well as uneven cash flow at different periods of time. जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हमने डिस्कस किया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। इन द सेम वे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड आल्सो कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और यह मेथड उन सिचुएशंस में अप्लाई किया जा सकता है जहां पर इवन और अनइवन कैश फ्लोज एक प्रोजेक्ट जनरेट करता है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। सो इन सिचुएशंस में इस मेथड को यूजफुली अप्लाई किया जा सकता है। Second advantage of this method is it considers the profitability of the project for its entire economic life and hence enables evaluation of true profitability. यह मेथड किसी भी प्रोजेक्ट की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट करने में हेल्प करता है, बिकॉज इस मेथड में जो हम कैश फ्लोज कंसीडर करते हैं इवेल्युएशन के लिए, जो प्रॉफिट्स कंसीडर करते हैं वह उसके एंटायर इकोनॉमिक लाइफ में जो प्रॉफिट जनरेट किए जाते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। जैसे कि पे बैक मेथड हमने डिस्कस किया था, पे बैक मेथड की एक ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है कि उसमें सिर्फ पे बैक पीरियड तक के प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज को ही कंसीडर किया जाता है, जबकि इस मेथड में ऐसा नहीं है। इसमें एंटायर इकोनॉमिक लाइफ में जो प्रॉफिट जनरेट होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, इसलिए प्रोजेक्ट की सही प्रॉफिटेबिलिटी असेस की जा सकती है इस मेथड के द्वारा। नेक्स्ट ड्रॉबैक इज the determination of cost of capital is not a prerequisite for the use of this method and hence it is better this is the advantage of this method, that is the determination of cost of capital is not a prerequisite for the use of this method and hence it is better than the net present value method where the cost of capital cannot be determined easily. यस, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की यह एडवांटेज भी है कि इस मेथड में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक प्री रिक्विजिट नहीं है इस मेथड को यूज करने के लिए। जैसे कि एनपीवी मेथड की ये ड्रॉबैक थी कि वहां पर हमें एक पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करनी जरूरी थी, तभी हम एनपीवी कंप्यूट कर सकते थे, बट इस मेथड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसके लिए ऐसी कोई प्री रिक्विजिट अप्लाई नहीं होती, जो कि एनपीवी मेथड में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करना इजी नहीं था और उसको हमें डिटरमाइन करना नेसेसरी था। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म रैंकिंग ऑफ वेरियस प्रपोजल्स ड्यू टू परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। यह मेथड डिफरेंट प्रपोजल्स की यूनिफॉर्म रैंकिंग करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज यहाँ परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न को लिया जाता है। सो उस परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे जो प्रोजेक्ट हायर परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहा है उसके बेसिस पे उसको हायर रैंक असाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म रैंकिंग प्रोजेक्ट्स की इजिली की जा सकती है। And this method is also compatible with the objective of maximum profitability and is more reliable technique of capital boosting. यह मेथड मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव के कंपैटिबल मेथड है। सो यह कैपिटल बस्टिंग की रिलायबल टेक्निक है। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव के हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो ये मेथड भी परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न पर बेस्ड है। सो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं जहां पर रेट ऑफ रिटर्न हायर होती है, हाईएस्ट होती है, तो इट इज कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। So these are the advantages of IRR method. Here we will discuss what are the disadvantages of internal rate of return method.
बिकॉज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की कुछ एडवांटेजेस हैं, बट उन एडवांटेजेस के बावजूद कुछ डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स भी हैं इस मेथड में। वह क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इज द मोस्ट डिफिकल्ट मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ये मेथड अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। इसके अलावा जो आईआरआर की डिटर्मिनेशन है उसमें उसको डिटरमाइन करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। तो यह इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की इवेल्युएशन का अदर मेथड्स के कंपैरेटिवली डिफिकल्ट मेथड है, बिकॉज द कंप्यूटेशन इज आल्सो डिफिकल्ट in this method. This method is based upon the assumption that the earnings are reinvested at the internal rate of return for the remaining life of the asset, which is not a justified assumption, particularly when the average rate of return earned by the firm is not close to the internal rate of return. In this sense, NPV method seems to be better as it assumes the earnings are reinvested at the rate of firm's cost of capital. यह मेथड इस assumption पे बेस्ड है कि जो अर्निंग्स प्रोजेक्ट के द्वारा अर्न की जाती है उनको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है प्रोजेक्ट की रिमेनिंग लाइफ के लिए, और यह assumption जस्टिफाइड assumption नहीं है, बिकॉज इन अर्निंग्स को री इन्वेस्ट किया जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे। यह assumption सही नहीं है, और यह पर्टिकुलरली उस केस में सही नहीं होती जब जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अर्न किए जा रहे फर्म के द्वारा वह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के क्लोज नहीं है, उसके इक्वल नहीं है। तो इस सेंस में यह प्रोजेक्ट सही assumptions पर काम नहीं करता। But the net present value seems to be better as compared to this method in this sense, because net present value method assume करता है कि जो अर्निंग्स री इन्वेस्ट की गई है फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पर री इन्वेस्ट की गई है, जबकि इस मेथड की assumptions सही नहीं है। Next is the results of NPV method and IRR method may differ when the projects under evaluation differ in their size, life and timings of cash flow. Although IRR मेथड और एनपीवी मेथड दोनों टाइम एडजस्टेड मेथड्स हैं, बट कुछ सिचुएशंस में एनपीवी मेथड और आईआर मेथड के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। किसी केस में एनपीवी मेथड उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करता है तो आईआर मेथड उसको रिजेक्ट कर सकता है। सो इस सेंस में भी इस मेथड की एक ड्रॉबैक है, और ये पर्टिकुलरली कब होता है जब प्रोजेक्ट्स जो इवेल्युएशन के लिए कंसीडर किए गए हैं वह प्रोजेक्ट्स डिफरेंट है, उनके साइज में मीन्स जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वह डिफरेंट है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट डिफरेंट है, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है, टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो जो कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स में वह डिफरेंट है, देन these two methods can generate different results. So these are the disadvantages of internal rate of return method. I hope you must have understood this method very well. In the next video, we will understand the profitability index method. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.